Good morning, students. Yesterday, we started a new subject that is project management, in which we discussed like what is a project, what are different types of project like industrial projects and development project, what is its difference, okay, what are the benefits of a project to a nation, and how we go through implementing a project, how we can decide whether we are going to select a project or reject it, whether we are going to continue with it or to pursue it, or we are going to reject or deny the project in a very first stage. तो उसके लिए प्रॉपर एक फिजिबिलिटी स्टडी मैंने आपको बताई थी, जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स से हम प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी या प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं, जिसमें उसके सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को हम एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, एंड देन वी आल्सो फर्दर रैंक द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू दीज फिजिबिलिटीज. डिफरेंट जो प्रोजेक्ट आइडियाज हैं उनको हम रैंक करते हैं, एंड द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विच इज एट नंबर 1 रैंक फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट्स और जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी सबसे कम होती है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आप इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन. तो किसी भी पर्टिकुलर सेलेक्टेड प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसके रिटर्न से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. दैट इज द राइट डिसीजन. ओके, सो इकोनॉमिक एंड मार्केट एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो इन द रिसेंट ईयर्स द मार्केट एनालिसिस हैज अंडरगॉन अ पैराडाइम शिफ्ट. इसमें हम बेसिकली क्या काम करते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड है उसकी फोरकास्टिंग और प्रोजेक्शंस चेक करते हैं. वी आल्सो फाइंड द डिमांड फोरकास्ट एंड डिमांड सप्लाई गैप. ठीक है, जो आपका ये जो डिमांड फोरकास्ट है उसको चेक करते हैं. एंड वी आल्सो चेक what is the gap between the demand and supply. If the supply is more than the demand, then maybe the particular products or goods or service is no longer useful for the customers. Okay, because there are so many players who are providing or supplying the same kind of product, the same kind of substitute product. So maybe it is not that feasible. But if suppose the demand is so much and the supply is less, then the new players can also enter in the market. If there is no less entry barriers, अगर entry barriers बहुत ज्यादा नहीं है तो नए players भी इसमें आ सकते हैं. Then again it depends upon the market penetration strategy of the new players. Okay, जो भी new entrepreneur आ रहा है उस field में, वो क्या market penetration strategy use, whether he is providing a better quality or something new or innovative, some kind of value addition to the product, or some kind of innovative product, or whether he is providing the same kind of good or service at a cheaper price. So क्या strategy opt कर रहा है उस पर भी depend करेगा. So but strategy क्या opt करनी है, again it depends upon the मार्केट एनालिसिस, जो कि आपकी मार्केटिंग रिसर्च पर बेस्ड होगी. मार्केट प्रोजेक्शंस आर टू बी मेड कीपिंग इन व्यू ऑल पॉसिबल developments. In market analysis, a number of factors need to be considered, covering the product specification, pricing, channels of distribution, trade practices, threats of substitutes, domestic and international competition, opportunities for exports, etc. तो जब हम मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, उनकी एनालिसिस करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, इवेल्युएट करेंगे. इसमें आपका मेनली जो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन या उसके फीचर्स हैं, उसकी क्वालिटी है, उसका प्राइस, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं विच आर गुड, which are better than the other substitutes or the other competitive players, but they don't have a good distribution channel. उनका supply chain management बहुत अच्छा नहीं होता, तो इसलिए उनकी जो सेल है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती है डिमांड होने के बाद भी. then also it hampers the profitability of that particular company's product. Okay, so it depends on so many factors, not only the quality and price of the product, but also on its channels of distribution, trade practices, threat of substitutes, domestic and international competition, and the opportunity for exports. So it should aim at providing the analysis of future market scenario so that the decision of project investment can be taken in an objective manner, keeping in view the market risk and uncertainty. Second type of analysis in the project appraisal is technical appraisal. टेक्निकल अप्रेजल बेसिकली जो भी आपका जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है उस प्रोडक्ट के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को
जो रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसको डिनोट करता है। द एनालिसिस encompasses available alternative technologies, selection of the most appropriate technology in terms of optimum combination of the project components, implication of the acquisition of technology, and contractual aspects of licensing. Okay, so jitne bhi technical aspects hai, whether it is related to the products engineering itself or it is related to some of its legal aspects and other technical aspects, so a special attention is given to the technical dimensions such as the in the project selection. तो टेक्नोलॉजी में हम क्या क्या चेक करते हैं? द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट आर इट्स ऑल्टरनेटिव्स व्हिच आर देयर इन द मार्केट, देन द लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट, other implication, the plant capacity, market demand, technological parameters, inputs में आपके raw material और उसके components आ गए, ancillary components, इसमें mainly direct material और indirect material आ गए उसके, power, water, fuel, others, availability, skills, manpower, location, logistic, environmental consideration like pollution etc, ये सब technical aspects में आ जाते हैं. Requirement of the building foundation and other relevant details. Then the third is the environmental appraisal or the environmental impact studies. Basically कोई भी project है, whether it is a industrial project or development project, especially जो आपके industrial projects हैं वहां से जो जिस भी तरीके के emittents release हो रहे हैं इंडस्ट्री में से, whether it is in the form of air or gas or in the form of some water, chemicals, effluents और इन दी फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो वो हमारे एनवायरनमेंट को कितना हार्म कर रहे हैं, कितना डिग्रेड कर रहे हैं. इट विल डिपेंड कि वेदर एनवायरमेंटली दैट प्रोजेक्ट विल बी साउंड, इट विल बी अप्रूव्ड बाय दोज पर्टिकुलर अथॉरिटीज और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है जो कि एक रिवर के बैंक पर है और वहां पर से क्या हो रहा है कि जो एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं वो रिवर में जा रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, वो पॉल्यूट कर रहे हैं, कंटेमिनेट कर रहे हैं उस वाटर को, ड्रिंकेबल वाटर को. देन द प्रोजेक्ट विल नॉट बी फीजिबल एनवायरमेंटली, क्योंकि जो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी है विच एक्चुअली मॉनिटर द अबाइडेंस और कॉम्प्लायंस ऑफ द वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, वो कभी भी उस चीज को सेलेक्ट नहीं करेगी, कभी भी उसको अप्रूव नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी. इट विल डेफिनेटली रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ओके, इसी तरीके से जो गैशियस केमिकल्स निकलते हैं चिमनियों में से धुएं के रूप में फैक्ट्रीज में से, ओके, जो भी हार्मफुल केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं गैस में जो कि हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इफ दैट इज सिग्निफिकेंटली हैपनिंग देन ऑल्सो दैट विल बी रिजेक्टेड. तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे. तो बट टू सम एक्सटेंट, अप टू सम इग्नोरेबल एक्सटेंट दैट कैन बी अप्रूव्ड, बट as far as it significantly harm our environment either from air or water or in other way, it will not be accepted. इसी तरह से noise pollution भी है, that has also to be considered. तो इसके लिए क्या करना होता है, प्रोजेक्ट्स को एक environmental clearance लेना होता है, हर प्रोजेक्ट को अपना एक environmental clearance लेना होता है जिसमें water pollution, air pollution इन सब का उसको compliance show करना होता है, and that has to be done in the feasibility study. Then the objective of environmental impact studies. Okay, so the main objective is to identify and describe the environmental resources, values, or the environmental attributes which will be affected by the project in a quantified manner as far as possible, to describe, measure, and assess the environment effects that the proposed project will have on the environmental resources and its values, to describe the alternatives to the proposed project which could accomplish the same results but with a different set of environmental effects. तो अगर सपोज आप जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं विच इज योर एनविसेज्ड प्रोजेक्ट, जिसे आप करने के लिए सोच रहे हैं, वो ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है, तो देन यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑल्टरनेटिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट और वी कैन से ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट जो कि लेस एनवायरमेंटली हार्मफुल हो, जो कि इसके की एनवायरमेंटल इफेक्ट्स डिफरेंट हो, ओके, विद द सेम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स. So the environmental impact studies would facilitate providing necessary remedial measures in terms of the equipments and facilities to be provided in the project to comply with the environmental regulation specifications. तो अभी तक हमने डिस्कस किया लाइक व्हाट इज अ टेक्निकल एनालिसिस इन अ प्रोजेक्ट,
what is its economic and market analysis, and how we do an environmental impact study or environmental analysis or environmental appraisal of a project. And now we are going to discuss about the financial analysis or the financial appraisal or the financial feasibility of any project. और इस तरह से हम ये फाइनेंशियल वाला एस्पेक्ट स्टडी करेंगे या इवेल्युएट करेंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल में, और फिर उसको फाइनली अपनी फीजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे. ओके, सो अ फाइनेंशियल एनालिसिस एग्जामिन्स द वायबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल और कमर्शियल कंसिडरेशन. तो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फाइनेंशियली कितना फीजिबल है, कितना सक्सेसफुल होगा, कितना वायबल है, इसमें हम इसको चेक करते हैं. और इसका जो मेन इंडिकेटर होता है वो होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, अपने प्रोजेक्ट में, उसमें आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है. ओके, सो जितना रिटर्न ज्यादा होगा उसकी वायबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी. सम ऑफ द कॉमनली यूज टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI वेरी कॉमन. इसमें हम क्या करें कि जो भी रिटर्न है उसको डिवाइड करें अमाउंट इन्वेस्टेड से एंड वी फाइंड आउट इट इन परसेंटेज. ये परसेंटेज में होता है. दूसरा होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू. ये सारे इंडिकेटर्स जो आपको फाइनेंशियल्स में, ये आपके 4th यूनिट में बहुत डिटेल में है, ये मैं आपको आगे लेक्चर्स में कराऊंगी बहुत डिटेल में. वी विल बी डूइंग द न्यूमेरिकल्स, वी विल वर्क आउट ऑन द न्यूमेरिकल्स ऑफ द सेम. इसके अलावा नेट प्रेजेंट वैल्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है. ये सब डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स होती हैं जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर बेस्ड होती हैं, और ये आपने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉप सब्जेक्ट में पढ़ा होगा जब आप BBA 3rd सेमेस्टर में होंगे. एंड नाउ यू आर इन BBA 6th सेमेस्टर, सो यू मस्ट बी फेमिलियर विद ऑल दीज फाइनेंशियल टर्म्स लाइक ROI, NPV, profitability index or the benefit to cost ratio BCR, internal rate of return IRR, and the payback period. Okay, so payback period, as you know, this is the simplest of all the methods. We find out that how much time a project will take to recover its initial investment. जितने समय में किसी बिजनेस का या किसी प्रोजेक्ट का पैसा रिकवर हो जाता है या उस पर्टिकुलर बिजनेस के रिटर्न से वापस आ जाता है, वो उसका पेबैक पीरियड कहता है. सपोज आपने एक पर्टिकुलर छोटा सा बिजनेस किया जिसमें फार्मर ने 20,000 रुपीज को इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें उसने क्या किया, एक फिश पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किया. उसमें एनुअल नेट रिटर्न आपका 5,000 का आता है. तो आपने निकाला कि हर साल 5,000 रुपए आ रहे हैं, आप 20,000 लगाए, इसका मतलब टोटल 4 साल लगेंगे जिसमें ये 20,000 रुपए रिकवर कर पाएगा, पे बैक हो पाएगा उस पर्टिकुलर बिजनेस प्रोजेक्ट में. यानी कि 4 इयर्स क्या हो गया इसका पे बैक पीरियड हो गया. तो जब भी हम 2-3 ऑल्टरनेटिव लेके चलते हैं बिजनेसेस के, तो वहां पे हम देखते हैं जिस भी बिजनेस का पे बैक पीरियड शॉर्टेस्ट होता है, कम से कम होता है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे. सपोज यहीं पर कोई दूसरा ऑप्शन मिलता है, फॉर्मर को दूसरा ऑल्टरनेटिव मिलता है जहाँ पे 3 साल में उसका पैसा रिकवर हो रहा होता, तो the business with a payback period of 3 years is more appreciated and will be more readily accepted rather than the one which is providing a 4 years payback. Okay, तो पेबैक पीरियड के टर्म्स में हम देखते हैं कि जितना कम पेबैक हो उतना अच्छा है, और रेट ऑफ रिटर्न ROI, IRR, NPV इसमें देखते हैं जितना ज्यादा अमाउंट हो, क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में हो, ये टाइम के टर्म्स में. तो टाइम जितना कम लगेगा बिजनेस की रिकवरी में उतना अच्छा है, और पैसा जितना ज्यादा उसमें प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा अच्छा है. ठीक है, दूसरा एग्जांपल है वेरिंग एनुअल रिटर्न इन अ प्रोजेक्ट. सपोज देयर इज अ प्रोजेक्ट इन विच इट रिक्वायर्स ₹1 lakh एज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट. एक हॉर्टिकल्चर ऑर्किड का बिजनेस है, एक बगीचे वाला बिजनेस है जिसमें मिनिमम ₹1 lakh रिक्वायर्ड है. ओके, इसका एनुअल कैश फ्लो आपको गिवन है, लाइक एनुअल इनकम आपको दी है. ठीक है, हर साल एक बार आपको 60,000 मिल रहा है, दूसरे साल में 70,000 और 85,000, जबकि आपका 1 लाख रुपीज इनिशियल इन्वेस्टमेंट था. ठीक है, तो आप देखोगे कि पे बैक पीरियड जो है वो कितना कितना आ रहा है इन वाले बिजनेसेस में. ठीक है, तो जो आपका पे बैक पीरियड वो 2.5 ईयर्स है. ठीक है, वो है आपका कितना 2.5 ईयर्स, क्योंकि पहले साल में 60,000 आया, दूसरे में 70,000 आया, तो जो बाकी के 40,000 थे वो सेकेंड ईयर से रिकवर हो रहे हैं. तो 70,000 माइनस 40,000 अपॉन इस तरह से एक फॉर्मूला लगता है जिसको हम डिटेल में बाद में करेंगे. तो इस लेक्चर में अभी इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स.